नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत की पाकिस्तान पर बड़ी कूटनीतिक जीत, कल स्वदेश लौटेंगे भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन। इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में किया ऐलान। भारत ने दुनिया के सामने रखा पाकिस्तान के झूठ का सबूत। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने बुधवार को किया था F-16 से हमला। जवाबी कार्रवाई में वायुसेना ने मार गिराया लड़ाकू विमान। सेना ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए एमरैम मिसाइल दागने के सबूत। कहा, किसी भी हमले का देंगे माकूल जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा समिति की हुई बैठक। मौजूदा सुरक्षा हालात पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ की बैठक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और सभी राजनीतिक दलों से आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में बोलने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को अस्थिर करने वाली ताकतों से निपटने के लिए पूरा देश है एकजुट। न रुकेगी न थमेगी राष्ट्र की प्रगति। और वन क्षेत्रों में रहने वाले करीब 12 लाख आदिवासियों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के अपने आदेश के अमल पर लगाई रोक। राज्य सरकारों से आदिवासियों के दावे खारिज करने की प्रक्रिया के बारे में मांगी जानकारी। तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। वायुसेना का कहना है कि पाकिस्तान ने 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने, सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाने और F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर झूठ बोला है। सेना ने पाकिस्तान के F-16 विमान में ही इस्तेमाल होने वाली एमरैम एयर टू एयर मिसाइल के टुकड़े और दूसरे सबूत मीडिया के सामने रखे हैं। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि तीनों सेनाएं पाकिस्तान की किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। अधिकारियों ने 27 फरवरी को हुए घटनाक्रम की सिलसिलेवार जानकारी दी। On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards General Area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI and Mirage 2000 were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan-occupied J&K, where he was taken into custody by the Pakistan Army. IAF remains ever vigilant, ready, and committed to take on any eventuality. IAF has also learned that Pakistan has announced that Wing Commander Abhinandan will be returned to India tomorrow. IAF is happy and looks forward to return of Wing Commander Abhinandan. Air Force
attempted to target our military establishments in J&K. Specifically, they targeted a brigade headquarter, a battalion headquarter, our defenses, and a logistic installation. However, given the high level of preparedness along the line of control and the immediate and punitive response given by our own forces, the Pakistan Air Force's designs were foiled. We continue to maintain strict vigil along both the line of control and the IB sector. Our ground-based air defense weapon systems have been put on high alert all along the line of control and also in some parts of the IB. Our mechanized forces have also been placed on standby. I wish to assure the nation that we are fully prepared and in a heightened state of readiness to respond to any provocation by Pakistan. The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all three dimensions: on surface, undersea, and in air, to deter, prevent, and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. I can assure you of a resolute, swift, and strong response by the Navy when needed. तो पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। भारत के दबाव और अंतर्राष्ट्रीय पहल के बाद पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया है। पाकिस्तान संसद के साझा सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अमन का संदेश देते हुए वो भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को कल रिहा कर देंगे। बुधवार को पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय क्षेत्र में हमले की कोशिश की थी, जिसे भारतीय जेट ने नाकाम कर दिया था। इस कार्रवाई में पाकिस्तान का एक विमान मार गिराया गया था और इसी दौरान भारत का एक MiG-21 भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। और आइए इन तमाम घटनाक्रम पे और ज़्यादा चर्चा के लिए न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं। विदेश मामलों के जानकार मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, इसे कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत हम माने, क्योंकि आज जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा है। उसके बाद जबकि ऐलान कर दिया है कि हमारे सैनिक को वो वापस भेजने को तैयार है, कैसे देखें हम इसे? कूटनीतिक जीत कितनी बड़ी है ये हमारी? देखिए, भारत ने पहले दिन ही कहा था कि जिस तरीके से अभिनंदन वहाँ गए हैं और जिस तरीके से अभिनंदन जिस स्थिति में वो वहाँ एविक्ट हुए थे और पाकिस्तानी सीमा के अंदर जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंदर वो गिरे थे और उसके बाद वहाँ की आर्मी ने उन्होंने कब्जे में लिया था। तो ये एक जिनेवा कन्वेंशन है। जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार अगर किसी भी देश के किसी से सैनिक को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो उस गिरफ्तारी के बाद उन्हें तुरंत उस देश को सूचना देनी होती है, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके वेलफेयर के बारे में, और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो यह सुनिश्चित करना होता है और उसको अविलंब लौटाना पड़ता है। तो यही जिनेवा कन्वेंशन करता है और भारत ने साफ साफ संदेश दे दिया था। कल जो पाकिस्तान के एक्टिंग हाई कमिश्नर थे, उस एक्टिंग हाई कमिश्नर को विदेश सचिव ने समन किया था और विदेश सचिव ने समन करके उन्हें साफ साफ बताया था कि जो विंग कमांडर अभिनंदन है, विंग कमांडर अभिनंदन को अविलंब भारत को सौंपा जाए और इस पे कोई निगोशिएशन नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। और ऐसा ना समझा जाए कि विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के बदले कोई निगोशिएशन होगा या कोई लेन देन होगा, कोई मोल भाव होगा, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहली शर्त है कि आप विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कीजिए और इसके बाद दुनिया के तकरीबन सभी जो ताकतवर मुल्क हैं, सभी ताकतवर मुल्कों ने पाकिस्तान को इस बात की चेतावनी दी थी कि किसी भी तरीके से युद्ध के आसार नहीं बनने चाहिए इसके बाद। और कई कूटनीतिक तरीकों से पाकिस्तान को दुनिया के तकरीबन सभी देशों ने यह संदेश दिया था। और आज सुबह मैं बताऊं आपको अभिलाषा कि विदेश सचिव ने
जो P5 है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं, उनके एम्बेसडरों की बैठक सुबह बुलाई थी और उस बैठक में भी साफ साफ यह कह दिया गया था कि अगर उनको पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके के संपर्क है तो उन्हें यह सूचना दी जाए कि किस पर कोई समझौता नहीं होने वाला है। और इसके बाद पाकिस्तान पर लगातार दबाव बढ़ता गया और नेशनल असेंबली में जब चर्चा चल रही थी, कल से ही चर्चा चल रही थी, और नेशनल असेंबली में अंत में इमरान खान को यह कहना पड़ा कि विंग कमांडर अभिनंदन को कल लौटाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे भारत ने जिस तरीके से पूरी दुनिया के, और हमें यह बताया गया कि दुनिया के बड़े देशों से लेकर छोटे देशों तक सभी देशों को पाकिस्तान के इस करतूत की जानकारी दी गई कि किस तरह से जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों को उन्होंने ठिकाना दिया और किस तरीके से भारत ने जब उन ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन है भारत के, उस पर हमला किया। और इसके बाद कम्बैट में जब चेंज कर रहे थे विंग कमांडर उनके, जब भारत पर हमलावर मुद्रा में पाकिस्तानी जेट आए थे, उसमें वो वहाँ पाक ऑफ वाइट कश्मीर में गिरे थे और उसके बाद उन्हें कब्जे में लिया गया है। तो यह एक तरीके से युद्ध बंदी है वो, और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। अखिलेश, एक और अहम बात आज के इसी के बाद उन्होंने आज की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम बात सामने आई, जो साक्ष्य सामने रखे गए। कल आप भी कह रहे थे कि एक डोजियर सौंपा गया पाकिस्तानी उच्चायुक्त के प्रतिनिधि को। ये बात अब किस तरह से आगे जाएगी? क्या डोजियर जो सौंपा गया है उस पर अब हम आगे उम्मीद करें कि कोई जवाब आएगा पाकिस्तान का? इस ओर अब भारत सरकार का ध्यान खास तौर पे बना रहेगा? निश्चित तौर पे जो हमें बताया गया है, जो हमने सरकारी सूत्रों से बात की है, वरिष्ठ अधिकारियों से, उन्होंने साफ साफ बताया है कि इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि भारत अगर हमें सबूत दे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इसी के बाद भारत ने जितने सबूत इकट्ठे किए थे, जैसे मोहम्मद की पूरी गतिविधियों के बारे में, पुलवामा कांड में उसके संलग्नता के बारे में, उन सारे बातों का एक आरोप पत्र उसके एविडेंस के साथ सारे तैयार किए गए। और कल जो पाकिस्तानी उच्चायुक्त आए थे उनको ये सौंपा गया है और पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें वो डोजियर मिल गया है। अब भारत का यह कहना है कि आपने जो कहा है, इमरान खान ने जो कहा है, वो उसको पूरा करें। भारत ने वो आरोप पत्र, वो सारे सबूत उन्हें पेश किए हैं, तो वो उस पर उन्हें वॉक द टॉक करना चाहिए। और इमरान खान ने जो कहा कि हम भारत के साथ बात करना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोन पर बात करने की पेशकश की, भारत ने उन सारी पेशकश को ठुकरा दिया। उन्हें कहा गया कि आप पहले एक तो अभिनंदन को रिहा करें, उसके बाद आपने जो वादे किए हैं कि सबूत पेश करने के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे, तो उस पर कार्रवाई करें। और उसके बाद जो माहौल बनेगा, दोनों देशों के बीच शांति का जो माहौल बनेगा, उस माहौल के बनने के बाद बातचीत की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इसकी बजाय कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि अभी भारत उनसे बातचीत करने जाए। डोजियर पर पाकिस्तान को कार्रवाई करनी पड़ेगी, यही नॉर्मल है। जो पुलवामा में हमला हुआ था, उस पुलवामा में हमले के बाद भारत ने आरोप पत्र तैयार किया है और पाकिस्तान को इस पर कार्रवाई करनी होगी, और ऐसी कार्रवाई करनी होगी ताकि वो भारत को दिखे, दुनिया को दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो पाकिस्तान को अपने रवैये में बदलाव लाना होगा और भारत पूरी तरीके से इस वक्त इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपने कूटनीतिक प्रयासों में आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है, जिसमें पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच सीमा पर और देश में सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई है। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में कई अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इससे पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की थी। और आइए सीधे रुक कर लेते हैं हम विजय चौक का, जहां मेरे सहयोगी पंचानन मिश्रा मौजूद हैं। पंचानन, आज की बहुत ही अहम बैठक है क्योंकि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर मंथन हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे क्या अहम बातें सामने आ रही हैं निकल के? जी देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक हुई और अहम बैठक में जो पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष या विवाद की जो बात चल रही है वो एक अहम अपने आप में मुद्दा रही, क्योंकि यहाँ पर रक्षा मंत्री इसकी जो भाग है विदेश मंत्री रहती हैं, लेकिन साथ साथ तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो भी उसमें मौजूद थे। और हमने जैसा कि देखा कि भी तीनों सेनाओं की ओर से जो प्रेस ब्रीफिंग की गई उसमें साफ बताया गया कि पाकिस्तान की ओर से भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को
टारगेट करके जो हमला किया गया, हालांकि वो हमला कामयाब नहीं हुआ, लेकिन ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया है। इसका मतलब ये बड़ी बात है कि एक ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करना अपने आप में एक युद्ध जैसी स्थिति होती है। भारत कहीं ना कहीं उसको अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे भी उठाएगा, उसके सबूत भी यहाँ पर दिखाए गए, मीडिया के सामने पेश किए गए। उसका खास मकसद यही रहा कि जिस तरह से भारत ने उसके सिर्फ आतंकवादी शिविरों पर हमला किया था, बदले में पाकिस्तान ने एक युद्ध जैसी स्थिति को पैदा करने की कोशिश की। साथ ही जो हमारे जो पायलट है, जैसा अखिलेश जी बता रहे थे कि अभिनंदन उनको पाकिस्तान ने वापस करने की बात कही है, तो बदली हुई परिस्थितियों में क्या सुरक्षा के हालात हैं और जो प्रिपेयर्डनेस है सेना की, उस पर निश्चित तौर पर चर्चा हुई होगी। और जो इंटरनल जो सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी की, उसको किस तरह से देखा जाए, उस पर भी निश्चित तौर पर चर्चा हुई है। तो अपने आप में अहम बैठक है और जो मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं पाकिस्तान के साथ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर पाकिस्तान को दबाव मिलाने की, उन सारी परिस्थितियों पर यहाँ पर चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। और बड़ी बैठक निश्चित तौर पर है। उसके बाद कैबिनेट की भी बैठक हुई है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये इस परिस्थितियों के बीच में इन बैठकों का कहीं ना कहीं कोई ना जो सीधा जो एक निशाना दिख रहा है, वो पाकिस्तान के साथ नई बदली हुई परिस्थितियां हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादी हमला कर देश के विकास को रोकना चाहते हैं। ऐसे समय में देश को अस्थिर करने वाली ताकतों से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत ये तमाम बातें उन्होंने कही। साथ ही ये कहा कि देश के कई जगहों पर जुटे बीजेपी कार्यकर्ता और पार्टी समर्थकों के बीच ये तमाम बातें उन्होंने कही कि देश आज जवानों के साथ खड़ा है और हम सभी एकजुट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्वयंसेवकों से संवाद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश नई नीति, नई रीति के साथ आगे बढ़ेगा। जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एकजुटता की ताकत को दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे सुरक्षा बलों के मनोबल पर आंच आए और दुश्मनों को हमारी ओर उंगली उठाने का मौका मिले। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बूथ कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। हर बूथ का कार्यकर्ता 10 परिवारों को पार्टी के साथ जोड़े, सरकार के कामों की जानकारी लोगों तक पहुंचाए और वोटर्स को बूथ तक लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार 2016, 2017 और 2018 के लिए दिए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से गढ़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों के प्रयासों से देश और समाज को लाभ मिला है और ये काम ऐसे हैं जिनका फायदा पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता है। उन्होंने कहा कि जय जवान, जय किसान और जय अनुसंधान नए भारत का रास्ता बने, इसके लिए इस तरह के पुरस्कारों और नेशनल साइंस डे जैसे आयोजनों की भूमिका काफी अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है और हमें अपनी मौलिक शक्ति को बनाए रखते हुए भविष्य के समाज और अर्थव्यवस्था के हिसाब से ढलना होगा। हमारी सरकार अपने तमाम कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए भी इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास कर रही है। साथियों, हमारे पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड
इसका डिविडेंड है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारे युवाओं की महत्वाकांक्षाएं सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर उनकी ललक हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में हमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को जनता से जोड़कर उन्हें समाज की आकांक्षाओं और जरूरत के अनुरूप बनाना होगा। विज्ञान दिवस पर महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने हमेशा मानवता की भलाई के लिए अपना योगदान दिया है। फार्मा सेक्टर पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मामले में भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाजार है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय दवाएं 200 से ज्यादा देशों में निर्यात की जा रही हैं और इसके पीछे CSIR लैब जैसी तकनीक की ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि जब इच्छा शक्ति हो तो सीमित संसाधनों में भी अद्भुत परिणाम दिए जा सकते हैं और हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका उदाहरण है। दुनिया को आप जैसे हमारे अनेक वैज्ञानिकों के कौशल ने ही चकित किया है। अपने पहले ही प्रयास में हमने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में अपना मंगलयान सफलतापूर्वक भेज दिया था। ऐसे करने वाले हम पहले एशियाई देश थे। अभी तक जो हमने हासिल किया है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2022 तक देश का अपना गगनयान सफलतापूर्वक देश के अपने बेटे बेटियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा और वहां तिरंगा फहराएगा। क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च इस सोच को और शक्ति दे सकता है। यानी रिसर्च का एक ऐसा वातावरण बने जहां एक इंजीनियर सेल बायोलॉजिस्ट के साथ काम कर सके, एक केमिस्ट आर्ट से प्रेरणा ले सके, एक फिजिसिस्ट और सोशल साइंटिस्ट एक साथ सोच सके और काम कर सके। अलग अलग डिसिप्लिन और आइडियाज का ये संगम निश्चित रूप से R&D आधारित इनोवेशन का एक नया कल्चर विकसित करेगा। लोकसभा चुनाव में पंजाब में बीजेपी अपने पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच सीट के बंटवारे का फॉर्मूला 2014 वाला ही होगा, जिसके मुताबिक पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस ऐलान से पहले अमित शाह ने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल समेत अकाली दल और बीजेपी पंजाब इकाई के नेताओं के साथ बैठक भी की। जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 राज्यों के जंगलों में रह रहे करीब 12 लाख लोगों को बेदखल करने के 13 फरवरी के आदेश पर अमल पर रोक लगा दिया और कोर्ट ने राज्य सरकारों से आदिवासियों के दावे खारिज करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के उस आदेश के अमल पर रोक लगा दी है जिसमें 21 राज्यों के जंगलों में रह रहे करीब 11,80,000 आदिवासियों और वनवासियों को वन क्षेत्र से हटाने का आदेश दिया गया था। केंद्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम के तहत राज्यों की ओर से अपनाई गई दावे प्रक्रिया की समीक्षा तक फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। केंद्रीय सरकार को लगता कि अच्छी तरह से इस कानून को अमल में नहीं लाया। जो क्लेम्स को कंसिडर करना चाहिए था वो क्लेम्स कंसिडर नहीं किया अच्छी तरह से। जो रिजेक्शन ऑर्डर दिया उसमें बहुत सारे गलतियां हैं। तो केंद्रीय सरकार के इंटरवेंशन से सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और कहा कि ठीक है, एफिडेविट फाइल करो। हर स्टेट को ऐसा ऑर्डर किया कि हर स्टेट को एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। 21 राज्यों में आदिवासियों की जंगल की जमीन पर दावे को प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने राज्य सरकारों से ये दावे खारिज करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
Supreme Court decided to keep in abeyance its earlier order, stating that all rejections of claims under the Forest Rights Act had to result in evictions. The Supreme Court has today graciously agreed to keep it in abeyance and asked state governments to come back with proper and better material with regard to what procedures were followed, what kind of orders were passed, whether natural justice was followed at all, whether the tribals in question were served. सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को अपने आदेश में उन आदिवासियों से जमीन खाली कराने का आदेश दिया था जिनकी जमीन के दावे को सरकार ने नामंजूर कर दिया था। इस दायरे में करीब 12 लाख आदिवासी आ रहे थे। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की दलीलों को खारिज करते हुए हेराल्ड हाउस को खाली करने के पुराने आदेश को बरकरार रखा है। एजेएल ने नेशनल हेराल्ड के आईटीओ परिसर को खाली करने संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय को गलत ठहराते हुए हाईकोर्ट के सिंगल जज वाली बेंच के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एजेएल के वकील के मौखिक अनुरोध को भी खारिज कर दिया कि उन्हें परिसर खाली करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने 18 फरवरी को केंद्र और एजेएल की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज वाली बेंच ने 21 दिसंबर को निर्देश दिया था कि एजेएल को आईटीओ स्थित परिसर 2 हफ्ते के अंदर खाली करना होगा। पीड़ित मरीजों के लिए राहत की खबर है। कैंसर की 42 नॉन शेड्यूल्ड दवाओं को प्राइस कंट्रोल के तहत लाया गया है। सरकार ने इनके लिए ट्रेड मार्जिन 30% तक सीमित कर दिया है, जिसके बाद ये दवाएं 85% तक सस्ती हो जाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। दवा कंपनियों की कीमतों को दोबारा कैलकुलेट करने और उनकी जानकारी एनपीपीए, राज्यों के ड्रग कंट्रोलर, स्टॉकिस्ट और रिटेलर्स को देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। नई कीमतें 8 मार्च से लागू होंगी। उधर वियतनाम की राजधानी हनोई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच हुई शिखर वार्ता बेनतीजा रही और दोनों देशों के बीच किसी तरह का कोई करार नहीं हो सका। हनोई शिखर सम्मेलन में वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संवाददाता को बताया कि बैठक बिना किसी समझौते के ही खत्म हो गई। उन्होंने बताया कि उत्तर कोरिया ने उस पर से सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने की मांग की थी, जिसे अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया। दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी शिखर वार्ता थी, जिसकी शुरुआत कल हुई थी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच पिछले साल जून में सिंगापुर की पहली ऐतिहासिक बैठक हुई थी। दूसरी शिखर वार्ता समाप्त होने के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक माहौल के बीच बातचीत हुई। इस दौरान कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण और आर्थिक मसलों पर भी चर्चा हुई, लेकिन कोई करार नहीं हुआ। Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that. So we continue to work, and we'll see, but we had to walk away from that particular suggestion. We had to walk away from that. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।